ऑल ऑफ अस हैव मेजर्ड आवर वेट्स. हम अपना वेट मेजर करते हैं ना? यस और नो? रेज योर डिजिटल थम्स. Have you ever thought, is our weight everywhere same on the earth? We have already studied in lower classes कि हमारा जो बॉडी वेट होता है, it is 1/6 on moon. जो हमारा यहाँ पर वेट है, it is 1/6 when you measure it on moon. लेकिन अर्थ के ऊपर at every place is it same or different? Can anyone write down in the chat box whether it is same or different? Same or different everywhere on the earth? You can raise your hand also so that you can be unmuted. जय आदित्य भागवत, जकाल समर, परिनिका को अनम्यूट कर दीजिए मैम प्लीज. परिनिका. It is on the earth is always different. Again बेटा. Ma'am, the weight is different. Weight is different. Weight जो है at different, especially at the poles and at the equator, it differs. Do you know this? How do we? Weight जो है, that is also a force. Weight जो है, it is also a force. जो gravitational force है of the earth, gravitational force exerted by the earth on our body, उसको हम कहते हैं weight. जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ की, जिस फोर्स से वो हमें अपनी तरफ को पुल करता है, दैट इज द वेट ऑफ आवर बॉडी. ऑलराइट, दैट इज द वेट ऑफ आवर बॉडी एंड दैट इज कॉल्ड वेट. So as the value of gravitational force changes on poles and on equator, that means our weight will also differ at these two places, at poles and at equator. So body weight also changes. अब क्या measure, किस चीज से हम measure करते हैं? जो weight होता है, that is measured using a spring balance like this. You can see it. This is called as a spring balance. All right. और एक दूसरा बैलेंस भी है विच कैन बी, जो हमारी वेइंग मशीन्स होती है, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन्स, उनसे भी हम अपना वेट मेजर कर सकते हैं. तो जो बैलेंस विच इज यूज्ड टू मेजर द वेट is actually measuring, what is it doing? It is actually measuring the force exerted by the earth on the body. ठीक है, तो ये जो बैलेंस होते हैं, they are actually measuring the force exerted by the earth on the body. That is the weight of the body. हम इस स्प्रिंग बैलेंस से या इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन से अपना जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का, वो मेजर कर सकते हैं. और स्प्रिंग बैलेंस जो ये कॉमन एक फिजिकल बैलेंस भी होता है विच द वेंडर्स यूज करते हैं, हॉकर्स यूज करते हैं टू मेजर द मास ऑफ द बॉडी. they use to measure the mass of the body. We'll be studying about weight and mass in class 9th. तो ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, ये भी देखिए, इट इज यूज्ड टू मेजर. ये इसके साथ यहाँ पर देखिए, there is a scale which is mentioned here. यहाँ पर grams में mentioned है ये यहाँ पर, and this is flexible. It is having a spring inside, and ये जो नीचे एक हुक लगा हुआ है, इसके साथ हम लोग वेट को सस्पेंड कर सकते हैं to find out the weight of a particular object. Let me show you. आप ये स्केल भी देखेंगे कि इसमें ग्राम्स में वे कर सकते हैं. ये फिजिकल बैलेंस, ये वाला जो स्प्रिंग बैलेंस है, दैट इज यूज्ड इन लैब्स, फिजिक्स लैब में, केमिस्ट्री लैब में हम यूज करते हैं. लेकिन ऐसे बहुत बड़े बड़े बैलेंसेस भी होते हैं जो कि हम यूज करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस. सो फॉर मेजरिंग ग्रेटर वेट्स, यहाँ पर तो सिर्फ ग्राम्स में ना, तो ज्यादा अगर वेट मेजर करना है तो भी बैलेंसेस आर देयर, स्पेसिफिक बैलेंसेस आर देयर. अब ये इसके साथ मैंने हुक के साथ ये हैंग कर दिया है, एंड आप देखिए पहले इट वाज ऑन 0. यू कैन नोट डाउन द रीडिंग इज 0, नथिंग इज हैंगिंग हियर एंड इट इज शोइंग 0. अब उसके साथ मैंने एक ये हैंग कर दिया, इसके साथ एक वेट ऑलरेडी सस्पेंडेड है. अब इस बॉडी का वेट देखिए यहाँ पर
How much it is coming out to be? Around 54 grams. अब अगर इसके साथ में एक और वेट सस्पेंड कर देती हूँ, see the weight has increased to some about 115 or something. Yes, it is coming out to be around 20. Yes, it is 115. Now I am hanging another weight. ठीक है, इसके साथ में एक और weight सस्पेंड कर रही हूँ. Now it has increased. ठीक है, you can see it. It is coming out to be around 165. Because यहाँ पर each weight is about 10 grams. तो ये जो है, this is used to measure the weight of different objects. All right, spring balance जो है. All right, आप लोग different objects को भी हम hang कर सकते हैं to know the weight of I'm hanging this specs and it is about 25 grams. Can you see it? तो हम अलग अलग objects को use कर सकते हैं, but it is certainly not used to measure the weight of a maybe a specs or something. But क्योंकि ये lab में use हो रहा है, so we are using it for measuring certain amount of chemicals या substances को use करने के लिए. पर ऐसे बड़े बड़े भी spring balances आते हैं. Okay, yesterday we discussed how friction is both a friend and a foe. Today we will be discussed that in case the friction decreases, जैसे कि हम फ्लोर की बात कर रहे थे कि अगर फ्लोर becomes smooth, अगर उसके ऊपर वाटर या ऑयल स्पिल कर देते हैं तो फ्लोर जो होता है वो स्मूथ हो जाता है, उसका फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है and will not be able to walk. So now we have to know, can we increase or decrease friction? So what are those different ways by which we can increase or decrease friction? So ways to increase friction first we discussed. Why do we need to increase friction or decrease friction? बड़ा इजी सा रीजन है. अगर हमने वॉक करना है, अगर हमने व्हीकल्स को प्रॉपरली रन करना है विदाउट अवॉइडिंग एक्सीडेंट्स, इफ द एथलीट हैज टू इंक्रीज हिज और हर परफॉर्मेंस, तो उसके शूज में स्पाइक्स होने चाहिए, तो वहां पर हमारा इंक्रीज होना चाहिए फ्रिक्शन. तो इसका मतलब हुआ कि देयर आर सर्टेन थिंग्स we need to have a friction, increased friction to hold objects, right? तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, हमने पढ़ा है कल कि there will be lot many problems for us. So what are the different ways to increase friction? The first one, by increasing roughness of surface. By increasing roughness of surface. अगर हम किसी सरफेस की रफ सरफेस उसको बनाएंगे, अगर उसकी रफनेस को इंक्रीज करेंगे तो फ्रिक्शन इंक्रीज होगा. ये सबसे कॉमन मेथड है टू इंक्रीज फ्रिक्शन. जैसे कि टायर्स को हमने ग्रूव कर दिया, टायर्स को हमने ट्रेडिंग कर दिया, हम अंडर सरफेस ऑफ द जो शूज के सोल होते हैं उनको हम उसमें एक पैटर्न देते हैं, ग्रूव्स देते हैं, उससे फ्रिक्शन इंक्रीज होता है. अगर हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करेंगे तो we can increase the roughness. By increasing roughness of the surface we can increase the friction, and that will help us in walking, that will help us in driving. So this is the first method. Second one, by drying the surface. By drying, मतलब अगर हमने पढ़ा है तो पानी गिरा हुआ है सरफेस के ऊपर तो फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है. तो अगर सरफेस ड्राई होगा तो फ्रिक्शन इंक्रीज होगा. आपने नोट किया है, अगर रोड के ऊपर वाटर है या ऑयल स्पिल है तो वो स्लिपरी हो जाती है क्योंकि वहां फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है
और वो स्लिपरी हो जाती है। तो ड्राई करने के लिए सरफेस अगर हम ड्राई रखते हैं तो फ्रिक्शन इंक्रीज होता है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, समटाइम्स अगर ऑयल स्पिल हो जाता है तो हम सैंड थ्रो कर देते हैं। सैंड इज यूज्ड। सैंड आपने देखा है बहुत रफ होती है ना, तो सरफेस के ऊपर अगर हम सैंड फेंक देते हैं, ग्रेवल छोटा छोटा सा ग्रेवल जो होता है वो अगर फेंक देते हैं तो सरफेस जो है वो रफ हो जाता है, ठीक है। एंड रेनी सीजन में स्पेशली जब स्लिपरी हो जाता है ग्राउंड तो हम सैंड और ग्रेवल डाल देते हैं तो वो जो सरफेस होता है उसकी फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। आपने जिम्नास्ट अगर आपने स्पोर्ट्स देखे हैं, जिम्नास्ट देखे हुए, तो वहां पर वो अपने हैंड के ऊपर ना बिफोर स्टार्टिंग दे रब, इवन कबड्डी प्लेयर्स को आपने नोट किया होगा, वो अपने हाथ के ऊपर कुछ कोर्स सा सब्सटेंस, अगर उनको कोई चीज नहीं मिलती तो वो मिट्टी ले लेते हैं। कबड्डी वाले प्लेयर्स अपने हाथ पे मिट्टी लगा लेते हैं क्योंकि मिट्टी आपको पता है देयर हैविंग बिग पार्टिकल्स, तो कोर्स सब्सटेंस अपने हाथ के ऊपर रब करते हैं ताकि जो ग्रिप होती है उनकी वो अच्छी रहे। तो ग्रिप करने के लिए अगर आपने होल्ड करना है तो आपको फ्रिक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आपके हाथ के ऊपर ऑयल है, वाटर है, स्वेटिंग है, तो आपके हाथ स्लिप करेंगे क्योंकि फ्रिक्शन डिक्रीज हो गया। तो इसलिए वो कोर्स सब्सटेंस अपने हाथ पे लगाते हैं और उससे सरफेस जो है वो ड्राई हो जाता है और ड्राई सरफेस से फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब कोई भी कोर्स सब्सटेंस, एनी कोर्स सब्सटेंस, कोर्स मतलब जो रफ होता है, कोर्स सब्सटेंस इंक्रीजेस फ्रिक्शन। अब तीसरा मेथड, थर्ड मेथड इज बाय यूज ऑफ ब्रेक पैड्स। यूज ऑफ ब्रेक पैड्स you can increase friction। हमें पता है कि अगर हम ब्रेक पैड्स लगाएंगे ब्रेक सिस्टम ऑफ अ बाईसाइकिल, अगर वो व्हील को टच नहीं करेंगे, जब तक आप उसको प्रेस नहीं करेंगे वो व्हील को टच नहीं करेंगे एंड ब्रेक्स वोंट बी अप्लाई। स्पीड कैसे डिक्रीज होती है, अगर आपने बंद नहीं करना है साइकिल तो आप थोड़ी सी ब्रेक लगाते हैं तो वो जरा सा टच करते हैं ब्रेक पैड्स व्हील को और उसकी जो मोशन होती है उसको वो डिक्रीज करते हैं, राइट। So it increases friction. So these are the different methods to increase friction. And ये जो friction हम increase करते हैं, that is very much desirable in certain. Let me show you a few more. हाँ जी बेटा, soles of shoes we have already discussed, tires of vehicles we have discussed, brake pads to stop moving vehicles। and ये देखिए जिम्नास्ट जो हैं ये अपने हाथ के ऊपर यहाँ ग्रिप करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटर ग्रिप के लिए हैंडल्स के ऊपर आपने देखा हुआ है, इस शूज के सोल आपको दिखाई दिए हैं, यहाँ पर ट्रेडिंग दिखाई दी है। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। अगर हम आई वाज डिस्कसिंग आपके जो व्हीकल्स होते हैं, मे बी स्टेयरिंग ऑफ द कार और मे बी योर साइकिल का जो हैंडल होता है उसके ऊपर आप एक ब्लैक कलर का रबर ट्यूब देखते हो, उसके ऊपर रफ होता है उसका सरफेस, राइट। आप होल्ड कर पाते हो अच्छी तरह से। अगर वो नहीं होगा तो स्टील की बार होगी तो आपको पकड़ने में थोड़ी मुश्किल होगी, स्लिप होगा हैंड आपका। एक्टिवा पे देखा है आपने, मोटर बाइक के जो हैंडल्स हैं उसके ऊपर देखा आपने, जहां आप होल्ड करते हैं उनके ऊपर जो रबर ट्यूब्स होती हैं वो कई बार आपने देखा, आप क्रिकेट खेलते हैं बैट के हैंडल के ऊपर आपके यू हैव चेक, उसके ऊपर आप रबर ट्यूबिंग एक्स्ट्रा लगाते हैं सो दैट टू हैव अ बेटर ग्रिप, यस और नो। सो दीज आर ऑल मेथड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। तो अगर हम फ्रिक्शन इंक्रीज कर सकते हैं तो देयर हैज टू बी फ्रिक्शन समथिंग, समटाइम्स जरूरी नहीं है, ये सारे चीजों में हमने देखा फ्रिक्शन इज वेरी डिजायरेबल कि इंक्रीज किया जाए, लेकिन कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं समटाइम्स इट बिकम्स necessary to minimize friction also, it becomes undesirable to have friction, so we should know the different methods to decrease friction। कई बार बहुत ऐसी सिचुएशंस होती हैं, हम रिकॉल करते हैं कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जहां पर हमें फ्रिक्शन ज्यादा नहीं चाहिए। पहला है वन ऑफ द कॉमनेस्ट मेथड्स टू reduce friction is by using lubricants।
आपको पता है कि आपका साइकिल जो है, सबसे मैं कॉमन चीज इससे आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये चीजें हम डेली यूज करते हैं। जो हमारा साइकिल होता है, समटाइम्स यू विल सी दैट कि उसकी चेन जो है बहुत क्रैंकी सी हो जाती है और उसकी हमें ऑयलिंग करनी पड़ती है। यस, उसकी ऑयलिंग करनी पड़ती है, नहीं तो व्हाट हैपेंस कि आप जब चलाते हैं तो वो बहुत स्मूथ नहीं चलता, उसमें से आवाज आती है और वो थोड़ा रफ चलता है। तो अगर आप वहां पर उसकी ऑयलिंग कर देते हैं तो वो आसानी से चलता है। तो बहुत सारे ऐसे मशीन पार्ट्स हैं, डोर्स, कई बार आपने डोर को क्लोज एंड अपने हमारे गेट्स होते हैं रेनी सीजन में स्पेशली, उनके ऊपर रस्टिंग हो जाती है और जब हम उनको ओपन क्लोज करते हैं तो वो बहुत हार्ड हो जाते हैं। तो उनके ऊपर आपने घर में देखा होगा, एल्डर्स योर पेरेंट्स और मे बी ग्रैंड पेरेंट्स आर पुटिंग सम ऑयल ड्रॉप्स, और डोर्स के हिंजेस जो होते हैं उनमें भी हम ऑयल ड्रॉप्स डाल देते हैं ताकि वो आवाज ना करें एंड उनकी जो मूवमेंट होती है वो स्मूथ हो जाती है। तो वहां पर देयर यू हैव टू स्पेशली समटाइम्स यू हैव टू क्लोज द डोर विद द लैचेस। वो लैचेस जो हैं वो हार्ड हो जाती हैं। इट इज उनकी जो रबिंग होती है पार्ट्स की, सर्फेसेस की रबिंग होती है, मशीन पार्ट्स होते हैं, उनके बीच में जो हम लोग ऑयलिंग जब करते हैं तो वो दे फॉर्म अ थिन लेयर, एक ऑयल की या लुब्रिकेंट की एक थिन लेयर हो जाती है, ग्रीस की एक थिन लेयर हो जाती है। उससे क्या होता है, फ्रिक्शन जो है वो डिक्रीज होता है। फ्रिक्शन डिक्रीज कैसे होता है? फ्रिक्शन मैंने आपको बताया है कि जो सरफेस है उसका इट इज नॉट स्मूथ, इट इज हैविंग इरेगुलरिटीज। तो जब आप ऑयल डालते हैं, जब आप ग्रीस डालते हैं, तो ये इरेगुलरिटीज उस ऑयल से या ग्रीस से फिल हो जाती हैं और जब वो फिल हो जाएगी तो सरफेस स्मूथ हो गया, फ्रिक्शन डिक्रीज हो गया। यू गेट दिस ऑल ऑफ यू? तो ये जो लुब्रिकेंट्स होते हैं, कौन कौन से लुब्रिकेंट्स हैं? ऑयल, ग्रीस, ये सारे के सारे जो होते हैं इनको लुब्रिकेंट्स कहते हैं। देयर आर स्पेशल सब्सटेंसेस जो ऑयल, मोटर ऑयल हो गया, मशीन ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, ये सारे के सारे लुब्रिकेंट्स कहलाते हैं। और जब हम इन्हें यूज करते हैं बिटवीन द सर्फेसेस तो ये वहां पर एक थिन लेयर बना लेते हैं और दोनों सर्फेसेस के कांटेक्ट को, डायरेक्ट कांटेक्ट को बंद कर देते हैं तो वो इजीली मूव करते हैं। सो स्मूथ मूवमेंट बिकम स्मूथ। सेकेंड जो है बाय पॉलिशिंग सर्फेसेस, अगर हम पॉलिश कर देते हैं, अगर हमारे घर में वुडन वर्क हुआ है तो हमने अगर कहीं पर पॉलिश नहीं करवाया तो वो पॉलिश जो होती है एक थिन फिल्म बना लेती है। पॉलिशिंग द सर्फेसेस, उससे क्या होता है, अगेन पॉलिश करने से जो इरेगुलरिटीज है सरफेस की वो कवर हो जाती हैं, वो सरफेस जो है स्मूथ हो जाता है, फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। थर्ड है बाय यूजिंग व्हील्स। व्हील्स हमने पढ़ लिया, रोलिंग फ्रिक्शन जो है कम है, सो व्हील्स जो है रिड्यूस करती हैं फ्रिक्शन। बॉल बेयरिंग्स, बॉल बेयरिंग्स जो है हमारे मशीन्स में यूज होते हैं। बॉल बेयरिंग्स जो है दीज आर आल्सो बॉल बेयरिंग्स और व्हील्स जो होते हैं दे रिड्यूस फ्रिक्शन बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन टू रोलिंग फ्रिक्शन। ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं और हमें पता है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, so it helps to reduce friction between the two surfaces in contact and it also helps to save energy। एनर्जी हमारी कितनी सारी सेव हो गई स्लाइडिंग से रोलिंग। आप ही इमेजिन कीजिए अगर आपको पुश करना है किसी ऑब्जेक्ट को, हैवी ऑब्जेक्ट को, तो आपको कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन अगर उसके नीचे व्हील्स होंगे आप आसानी से उसको पुश कर देते हैं, एनर्जी बच गई। So be it machine energy or your energy, energy is greatly saved in case of this reason. So that is why wheels are used under heavy objects। कई बार आपने नोट किया होगा कि हम लोगों ने लोअर क्लासेस में सिंपल मशीन्स में पढ़ा हुआ है, अगर हम लॉग्स रख देते हैं उसके ऊपर हम पुश करते हैं अक्रॉस एन इंक्लाइंड प्लेन तो वो रोल करते हुए रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो लेस होता है। सो लेट अस क्विकली नाउ again recall what are those ways by which we can reduce friction. So applying lubricants, applying grease into your cycle chain, applying oil, machine parts ये देखें यहाँ पर, then polishing the surfaces that also reduces friction and adding wheels, ये ball bearing ये आप लोगों ने देखा होगा बेटा, it is used in cycles also
ये बॉल बेयरिंग्स जो हैं एक्सल में यूज होते हैं, that reduces the sliding friction to rolling friction. All right, and last but not the least, by streamlining the shape of the object, by streamlining there only with some time we'll be discussing streamlining in fluid friction tomorrow. तो streamlining an object, aeroplane, boats, other vehicles जो होते हैं, आपने अगर उनकी शेप को नोट किया है तो वो आगे से नैरो होते हैं, सेंटर से ब्रॉड होते हैं और पीछे से फिर से नैरो होते हैं. अगर आपने बोट की शेप को ध्यान से देखा है तो बोट हम ड्रॉ करते हैं, we draw it like this.